We are starting a two-part series, a message titled Soul Search. इसलिए हम लोग एक शीर्षक को शुरू करने जा रहे हैं जो हमने दो भाग में किया है, प्राणों को के लिए ढूंढ, Yeah, where we do a diagnosis of our soul. जहाँ पर हम ये देखना चाहते हैं लक्षण क्या है कि हम अपने प्राणों को ढूंढ सकें। When you go to the hospital with any kind of sickness, the doctor do a diagnosis of your physical body. जब हम अस्पताल में जाते हैं तो आप देखते हैं कि जो वैद्य लोग हैं वो हमारे शरीर का जांच पड़ताल करते हैं। And so when we come to the church in the presence of God, God through His Word searches our soul. और जब हम परमेश्वर के भवन में आते हैं तो परमेश्वर हमारी आत्मा का जांच और पड़ताल करता है। Our body, we are made up of three parts: our body and our soul and our spirit. हमारा जो शरीर है वो तीन प्रकार से बना है, हमारा शरीर, प्राण और देह। And our body is getting old, and one day our body will die. हमारा शरीर बुजुर्ग हो रहा है और एक दिन वो मर जाएगा, But our soul and our spirit will be alive and well. लेकिन हमारे प्राण और हमारी आत्मा हमेशा जीवित रहेगी। And so how well we strengthen our soul, that much more our spirit is strengthened. इसलिए जितना ज्यादा हमारी आत्मा, जितना शरीर हमारा मजबूत, प्राण हमारा मजबूत होगा, उतना हमारी आत्मा मजबूत And होगी। that's the inner person of who you are. और अब वो ये हमारा अंदरूनी मनुष्य तो है कि हम कौन हैं। That person will never die. वो मनुष्य कभी नहीं मरेगा। You will live for eternity. आप अनंत काल के लिए फिर You are जिएंगे। created for eternity. हम लोग अनंत काल के लिए सृजे गए हैं। And so it is important that is eternity, we need to decide where we are going to spend this eternity. इसलिए ये हमको निर्णय लेना है कि हमको अपना अनंत काल कहाँ बिताना है। Are we going to spend eternity in hell, or are we going to spend eternity in heaven? क्या हम अपना अनंत काल नरक में बिताना चाहते हैं या हम अपना अनंत काल स्वर्ग में बिताना चाहते And if our soul is not right with God, हैं? अगर हमारा प्राण परमेश्वर के साथ ठीक नहीं है if तो, our soul is not spiritually fed on a daily basis, और हमारी आत्मा अगर हर दिन उसको हम भोजन नहीं खिलाते हैं and our तो, love for God is becoming stronger and fervent day by day, और अगर हमारा प्रेम परमेश्वर के लिए दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, ठोस हो रहा है, then we become very tired, we become lazy, we become complacent, and we drift into sin, and we slide away from God and slide away from God's presence, and we lose our track of following our paths to और फिर eternity. इसके बाद हम अपनी आत्मा में कमजोर होने लगते हैं, थकने लगते हैं, फिर हम परमेश्वर से दूर जाने लगते हैं और एकदम से अलग हो जाते हैं। And so today we're going to look at Psalm 63. इसलिए आज हम भजन संहिता 63 देखेंगे। And this psalm, according to John Calvin, he calls it an anatomy for all the parts of the soul. जॉन कैल्विन करके एक व्यक्ति हुए, उन्होंने भजन संहिता को ऐसे करके बताया कि वो शरीर का रचना करने वाला एक भाग है जो हर अंगों को बताता है। So Psalm 63 explains different anatomies of our soul. Just like our physical body has different anatomies, our soul has different anatomies. And you read Psalm 63, it talks about the well-being of each of those anatomy of our soul. जैसे हमारे शरीर की रचना हुई है, वैसे ही भजन संहिता एक रचना को बताता है जो हम 63 भजन संहिता में पढ़ सकते हैं। And so today we're going to look at the first part, and next Sunday, don't miss out, because we're going to continue this series next Sunday. इसलिए आज हम उसका आधा भाग, पहला भाग शुरू करने जा रहे हैं। अगले हफ्ते, अगले रविवार को बिल्कुल ना मिस करें, छोड़े ना, जरूर से आए, हम अगला भाग शुरू करेंगे। So today's message is titled Keeping the First Love for God Alive. इसलिए आज का शीर्षक है कि अपने प्रेम को, परमेश्वर के प्रति पहले प्रेम को जीवित रखना। We are doing a soul diagnosis to find out whether we still love God just the way we loved God when we first gave our life to Jesus. हम अपनी आत्मा के अंदर जो लक्षण है उनके द्वारा ये मालूम करना चाहते हैं कि क्या हमारा पहला सा प्रेम परमेश्वर के लिए अभी भी जीवित है। We all know what first love means. हम सबों को पता है कि पहला प्रेम क्या होता है। When you have fallen in love with someone for the very first time, जब आप किसी के साथ प्रेम में पड़ जाते हैं बहुत पहली बार, you know in your heart something exciting have happened. आप एकदम से अपने हृदय में समझ जाते हैं, मन में समझ जाते हैं, कुछ बड़ा उत्तेजित सा हो गया है। And everything in your life changed from that moment onwards. और एकदम से आपके जीवन में एकदम से सब चीजें बदल जाती हैं। Your focus, your concentration, your devotion, your dedication is now everything towards that very thing that you have just fallen in love with. आपका समर्पण, आपका समय, आपका प्रेम, हर चीजें जो है एकदम से सब चीज बदल जाती How है। many of you know what I'm talking about? आप में से कितनों को पता है मैं क्या कहना चाह रहा How हूँ? many of you have fallen in love?
आप में से कितने लोग प्रेम में पड़े हैं? Yes, come on. Some of you have. आप में All से right. कुछ लोग, All right. Some of you are trying to fall in love. आप में से कुछ लोग प्रेम में पड़ना चाह रहे Or हैं some of you are hoping you will fall in love. और आप में से कई लोग आशा कर रहे हैं कि आप प्रेम So में I'm पड़ेंगे। praying that you will find the soulmate of your life, that where you can really experience and enjoy what does it mean to fall in love with someone. इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ, इच्छा करता हूँ कि आप में से कुछ लोग जो आशा करके बैठे हैं, आप पहले प्रेम में पड़ेंगे ताकि आप उसका आनंद उठा So सकें। if you know what that love and what it felt like for you to love this person that you love, and then finally to be able to get married to that person and live the rest of your life, you know exactly what I'm talking इसलिए अगर about. आपको ये पता है कि पहला प्रेम क्या होता है, प्रेम करना क्या होता है, कैसा महसूस होता है, अगर आपको ये सब पता है तो आप yes, I missed out. All right. In the same way, उसी तरह से every Christian who gave their life to Jesus Christ has a love relationship with Jesus. हर मसीही जो यीशु के साथ प्रेम में पड़ा है, वो अपना जीवन यीशु को देता है। Do you remember that day when you just gave your life to Jesus and said, from this day forth, I'm going to follow this Jesus, I'm going to love him, I'm going to worship him? क्या आपको वो दिन याद है अभी भी जिस दिन आपने यीशु से रिश्ता या प्रेम करने के लिए शुरुआत की और आपने बोला मैं इस यीशु से प्रेम करूंगा, उसकी आराधना करूंगा? Remember how excited you were? आपको याद है कि आप कितने उत्तेजित थे उस समय? And so today we're going to look at what the Bible tells us that indicates to us whether we still love God the same way or not. इसलिए आज हम बाइबल के द्वारा देखने जा रहे हैं कि क्या हम परमेश्वर से अभी भी उसी तरह से प्रेम करते हैं या नहीं। If not, maybe you have never given your love to Jesus. अगर ऐसा नहीं है तो अगर आपने अब तक प्रेम प्रभु से नहीं किया है You have तो never fallen in love with God. आप अभी तक परमेश्वर से प्रेम में नहीं पड़े हैं, Then today is your opportunity इसलिए आज आपके लिए सौभाग्य है to fall in love with Jesus. कि यीशु के साथ आप प्रेम में पड़ To जाएं, love God with all your heart. ताकि आप परमेश्वर से पूरे हृदय से प्रेम And to करें, receive his blessings and to live in fellowship with the goodness and the mercy of God. ताकि आप परमेश्वर के साथ संगति करें और उसके साथ उसकी भलाइयों में सम्मिलित हो जाएं। Amen. Amen. Long ago, a time in the history of the church in Ephesus, बहुत सालों पहले इफिसस की कलीसिया थी बाइबल में। there were believers that was just given their life to Christ and they were following God. यीशु के विश्वासी थे जो यीशु के साथ पीछे पीछे यीशु के चलते थे। They loved God passionately. वो यीशु को बहुत ही हृदय की गहराइयों से प्रेम But करते as थे। life went on for this group of believers, it became a religion and it became a routine for them. लेकिन इस झुंड के लिए, इन विश्वासी झुंड के लिए जब वो अपने जीवन में आगे बढ़ने लगे तो उनके लिए एक रीति सी बन गई, एक धर्म सा बन गया। They were doing many things for God, वो बहुत सी चीजें कर रहे थे परमेश्वर but के लिए, somehow their love for God has become lukewarm and weak. लेकिन उनका प्रेम किसी तरह से परमेश्वर के लिए कम हो गया और गुनगुना हो गया। And so to them, Jesus says in the book of Revelation chapter 2 verse 4, इसलिए प्रकाशित वाक्य में उन लोगों के लिए परमेश्वर कुछ कह रहा है। Jesus said, यीशु ने कहा, I have somewhat against you because you have left your first love. मेरे पास तेरे विरोध में कोई बात है जो मुझे कहनी है। I have something against you मेरे पास तेरे विरोध में कोई बात है जो मुझे that कहनी you है have left your first love. कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। If Jesus is to come to you by your side right now, अगर यीशु अभी आपके साइड में आ जाए तो, and if he is to whisper in your ear, अगर यीशु को आपके कान में फुसफुसाना है तो what will he say to you? वो क्या बोलेगा आपसे? I'm so glad you love me so much. मैं बहुत खुश हूं कि तूने मुझसे प्रेम रखा। Or will he say to you, I'm so against you that you don't love me anymore? और या वो आपसे ये बोलेगा कि मैं तेरे विरोध में हूं क्योंकि तू मुझसे अब प्रेम नहीं करता। Have you had those people that you loved or the people that you love ever come to you and say, you don't love me anymore like the way you used to? आपने कभी ऐसे लोगों को देखा है जो आपसे प्रेम करता है और वो आपको आकर बोले, तुम उनको जाकर बोलो कि मुझे लगता है तुम पहले जैसा प्रेम अब नहीं करते हो। We can know and we can feel when someone drops in their measure of love for somebody. हम एकदम से समझ जाते हैं, हमको मालूम पड़ जाता है जब अपना कोई प्रेम से हमारे प्रति नीचे जाने लगता And है। we are quick to discern that. हम एकदम से पता लगा लेते हैं। Sometimes with our relationship with Jesus, कभी-कभी हमारे संबंधों में यीशु के because साथ, we don't feel him in his body and we don't touch him and we don't hold him, क्योंकि हम यीशु को शारीरिक रूप में नहीं
नहीं देखते हैं, हम उसको छूते नहीं है, उसे पकड़ते नहीं We हैं। just assume that everything is okay. हम सोचते हैं कि सब कुछ ठीक ही है। Once a week I'm going to church. हफ्ते में एक बार मैं कलीसिया जाता I'm हूँ, giving my tithe. मैं अपना दशवांश देता I'm हूँ, giving my offering. मैं अपना दान देता I'm हूँ, doing my religious मैं duties. अपना सारा धार्मिक जो काम है वो मैं कर रहा हूँ। Jesus, you should be happy. यीशु, मुझे लगता है तू खुश होगा। But really, if he is to be sitting by your side, लेकिन सचमुच में अगर यीशु हमारे बाजू में आकर बैठा and हो if तो, he is to whisper into your ear, और अगर वो हमारे पास बैठकर हमारे कान में फुसफुसाए, what will you hear him say? तो आप क्या सुनेंगे वो हमसे बोलेगा? How many of you are hearing what he is saying to you right now? आप क्या सुन पा रहे हैं वो आपसे अभी क्या कह रहा है? To the Ephesus church, इफुसस की कलीसिया के लिए Jesus said, I have something against you यीशु ने इफिसस की कलीसिया से कहा, मेरे पास तेरे विरोध में कुछ बात है, because you have left your first love. क्योंकि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ And दिया the है। Lord commanded them और this. परमेश्वर ने, यीशु ने उनको ये आज्ञा दी। In verse 5 of Revelation chapter 2. प्रकाशित वाक्य के 2 अध्याय के 5वां पद, Remember therefore from whence thou art fallen, and repent and do the first works, or else I will come unto thee quickly, and I will remove thy candlestick out of his place, except thou repent. इसलिए यहाँ पर लिखा है, इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है, मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन न फिराए तो मैं तेरे पास आकर तेरे दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। Remember this is what God says. देखिए, याद करें कि परमेश्वर ये कहता है, If you don't love me anymore like the way you used to do, अगर आप जैसे पहले प्रेम करते थे वैसी अब मुझसे प्रेम नहीं रखोगे he's तो, saying, I'm going to come and remove the candle. यीशु कह रहा है, मैं आऊंगा और दीवट को हटा दूंगा, I'm going to remove the light. मैं उस रोशनी को हटा दूंगा, I'm going to remove the life. मैं जीवन को हटा दूंगा। And maybe some of us are feeling low in our life, in our spiritual life, or maybe we are not physically growing. We are not growing in various areas of our life because God may have snubbed the candlestick out of our life. शायद ऐसा भी हो सकता है कि हम में से कई लोग अपने शारीरिक रूप से, आत्मिक रूप से बहुत निम्न हो चुके हैं, क्योंकि परमेश्वर ने, यीशु ने वो दीवट हटा दिया है। Because we have not repented, we have not given God the opportunity to say, God, I'm sorry, I have got distracted here. Sorry, God, I want to turn around and I want to come back to you. We never did that, and as a result, God is kind of away from you a little शायद bit. हम में से कई लोगों ने मन नहीं फिराया है, पश्चाताप नहीं किया है, एक समय नहीं लिया है जब हम परमेश्वर से बोले, परमेश्वर मुझे माफ कर दीजिए, मैं वापस तेरे पास आना चाहता हूँ। And so today we're going to look at Psalm 63. इसलिए हम आज 63 भजन संहिता देखने जा रहे हैं। This psalm was written by David. दाऊद के द्वारा लिखा गया ये भजन संहिता It's a है। beautiful psalm. बहुत ही खूबसूरत भजन It's संहिता one of है। my favorite psalm in the Bible. मेरा बाइबल में सबसे ज्यादा मेरा पसंदीदा ये भजन संहिता है। He wrote this psalm when he was in the wilderness of Judah. जब वो एक मरुभूमि में था, वहां पर उसने, यहूदा की मरुभूमि में था, वहां पर दाऊद ने ये भजन संहिता लिखा। When he believed that he was in the wilderness of Judah during this time when his son Absalom had instigated a coup against his kingdom. जब उसका बेटा अबशलोम जो था, उसने अपने पिता के विरोध में उसने उकसाया एक झुंड को कि उसके विरोध में खड़ा हो जाए। And so David was on the run from his son. इसलिए दाऊद अपने बेटे से भाग रहा है। We know in the royal families, greed and position and power often even turn father and son against each other. हम देखते हैं कि राजकीय परिवारों में हम देखते हैं ज्यादातर जो है नाम होना या पदवी या प्रतिष्ठा होना, ये सब चीजें बाप और बेटे को विरोधी बना देती हैं। Now David is outside Jerusalem in a wilderness. अब दाऊद जो है यरूशलेम के बाहर एक मरुभूमि में है, And he is hiding for his life from his son. वो अपने बेटे से अपना जीवन को बचा रहा है। Why did David run? क्यों दाऊद भाग रहा था? Why did he leave Jerusalem and go out of Jerusalem? क्यों यरूशलेम से भागकर दाऊद बाहर भाग रहा Was था? he weak? क्या वो कमजोर था? Couldn't he stay in Jerusalem? क्या वो यरूशलेम में रुक नहीं सकता था? He could. रुक सकता था। He could stay there and he could fight a battle.
वो वहां पर रुक सकता था और एक युद्ध लड़ सकता था, But David wanted to avoid a war with his son. लेकिन दाऊद अपने पुत्र के साथ, बेटे के साथ लड़ाई को नहीं करना चाहता था। David was willing to humble himself to go away from the scene and not get into a tussle with his son. दाऊद अपने पुत्र से अलग रहना चाहता था ताकि वो युद्ध में ना लड़े अपने बेटे So के साथ। it was a very desperate time for David. इसलिए दाऊद के लिए बहुत एक निराशा का समय था And he turns to the Lord. और इसलिए वो अपना मुख परमेश्वर की तरफ मुड़ता How है। many of you know that desperate times are always a good time to turn to the Lord? आप में से कितनों को पता है जब हम बहुत निराश होते हैं वो एक समय होता है जब हम परमेश्वर के साथ सामने मुड़ सकते हैं। Hallelujah. If you are a child of God, अगर आप परमेश्वर के संतान हैं, go to God in your desperate moments. अपनी निराशा के समयों में परमेश्वर के पास जाएं। In your distress, call unto the Lord. अपने तनाव के समय में परमेश्वर को I पुकारें। know many people who have a natural instinct to turn away from God in their trouble, in their troubles. मैंने देखा है कई लोगों के पास ये प्राकृतिक एक समस्या सी है कि जब परेशानियां आती हैं तो हम परमेश्वर से दूर चले जाते But हैं। David turned to God in his distress. लेकिन दाऊद अपने तनाव के समय में परमेश्वर की ओर मुड़ गया। He was going through something that was an upset to his life. वो कुछ ऐसे समय से जा रहा था जो उसको परेशान कर रही थी। His daily routines have changed. उसका जो हर दिन का कार्य था वो सब चीजें बदल चुकी थी। His palace is not in the comfort of his palace. उसका जो महल था वो उसके लिए वो आरामदायक नहीं हो रहा था। But it was a time for David to look at his own spiritual life and do a stock take of where he is at in relationship with his God. और लेकिन दाऊद के लिए एक ऐसा समय था कि वो रुक कर ये देखे कि वो अपने जीवन में किस समय से गुजर रहा है और परमेश्वर की ओर निहारे। Mercy, would you read Psalm 63 for us in Hindi? भजन संहिता 63 हम पढ़ते हैं। हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे नित्य यत्न से ढूंढूंगा, सूखी और निर्जल उसर भूमि पर। मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा जीवन तेरा अति अभिलाषी है। इस प्रकार से मैंने पवित्र स्थान से तुझ पर दृष्टि की कि तेरी सामर्थ और महिमा को देखूं, क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है। मैं तेरी प्रशंसा करूंगा, इसी प्रकार मैं जीवन भर तुझे धन्य कहता रहूंगा और तेरा नाम लेकर अपने हाथ उठाऊंगा। मेरा जीव मानो चर्बी और चिकने भोजन से तृप्त होगा और मैं जय जयकार करके तेरी स्तुति करूंगा। जब मैं बिछौने पर पड़ा तेरा स्मरण करूंगा, तब रात के एक एक पहर मैं तुझ पर ध्यान करूंगा, क्योंकि तू मेरा सहायक बना है। इसलिए मैं तेरे पंखों की छाया में जय जयकार करूंगा। मेरा मन तेरे पीछे पीछे लगा रहेगा और तुझको तू अपने दाहिने हाथ से थाम लेगा। परंतु जो मेरे प्राण की खोजी हैं, वे पृथ्वी के नीचे स्थानों पर जा पड़ेंगे। वे तलवार से मारे जाएंगे और दरिद्रों पर आहार हो जाएगा। परंतु राजा परमेश्वर के कारण आनंदित होगा। जो कोई ईश्वर की शपथ खाए वे बढ़ाई करने पाएंगे, परंतु झूठ बोलने वालों का मुंह बंद हो जाएगा। As I read this psalm, I came up with 7 indicators that tells you whether you are in the first love or you have fallen away from your first love. जब मैं इस भजन संहिता को पढ़ रहा था तो मैंने 7 चीजें ऐसे पाई जो ये बताएगी कि क्या हम परमेश्वर के साथ प्रेम में हैं या प्रेम में नहीं हैं। Today we're going to look at 3 of them. आज हम उसमें से 3 चीजों को देखने And जा रहे next हैं Sunday we will look at next 4. और आने वाले रविवार में हम 4 उसकी बची हुई चीजों को देखने जा What रहे is the first thing I found out here? हैं। सबसे पहली चीज जो मैंने यहाँ पर पाई वो ये थी, And that is the priority of my life. हमारे सबसे पहली चीज जो मैंने पाई वो ये थी, हमारे जीवन की प्राथमिकता। What is the priority of my life? मेरे जीवन की प्राथमिकता क्या है? There is nothing like a change in our routine to help us to reflect upon what is the priority of my life. हमारे दिनचर्या के जीवन में ये चीजें मुश्किल नहीं है जानने के लिए कि हमारी प्राथमिकताएं क्या हैं। I think if there was ever a time in human life, last 2 years was the most ideal time for people to ask this question. अगर हमको ये जानना है कि हमारी प्राथमिकताएं क्या हैं तो पिछला 2 साल सबसे अच्छा है ये बताने के लिए Because none of us knew whether you would wake up tomorrow alive or dead. क्योंकि हम में से किसी को नहीं पता था कि हम अगले दिन उठेंगे, जीवित रहेंगे कि नहीं। And so every day I hope you ask this question, what is the priority of my life? इसलिए मैं ये विश्वास करता हूँ प्रतिदिन आप उठकर सुबह ये देखते हैं
कि आपकी प्राथमिकताएं क्या हैं। Look at David's priority, the sense of priority in his life. देखिए इस भजन संहिता में हम दाऊद के बारे में पढ़ते हैं, उसके जीवन की प्राथमिकता क्या थी। In his desperate time, उसके निराशा के समय में verse 1. पहला पद, Just read the first couple of phrases of verse 1. पहले पद की कुछ शब्दों को अगर हम पढ़ लें तो, He says, "Oh God, हे परमेश्वर, you are my God. तू मेरा परमेश्वर है, Earnestly I seek you." मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। So David in his desperate moment had God as the top priority in his life. इसलिए दाऊद अपनी निराशा के समय में पाता है कि उसकी प्राथमिकता परमेश्वर था। He was never far from God even in his desperate time. वो परमेश्वर से दूर नहीं था अपने सबसे तनाव भरे समय में। The word earnestly has the meaning of early in the morning I seek you. यहाँ पर यतन शब्द जो हिंदी में लिखा है वो बताता है कि तड़के सुबह उठकर मैं तेरे को यतन से ढूंढूंगा। Earnestly I seek you. In some translation they say early in the morning I seek you. किन्हीं अनुवादों में ऐसा लिखा है कि तड़के भोर को उठकर मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। The word earnestly also carries the idea of intensity. यहाँ पर ये जो यतन शब्द है वो ये भी बताता है उस शब्द की तीव्रता। That means इसका मतलब है David is seeking God earnestly, intentionally and intensively and passionately. इसका मतलब दाऊद यहाँ पर परमेश्वर को बहुत ही तीव्रता से, बहुत ही लगन से और बहुत ही ध्यान से ढूंढ रहा है। Whenever you read any books on priorities, जब भी आप कोई भी किताब पढ़ेंगे प्राथमिकताओं के ऊपर, it begins by saying something like this. वो ऐसे शुरू होती है, ऐसे बोलती है, The main thing is to keep the main thing the main thing. जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है उसको हमको महत्वपूर्णता से उस महत्वपूर्ण चीज को रखना है। How many of you think that's right? आप में से कितनों को लगता है कि ये सही है? You need to keep the main thing in your life. आपको जो महत्वपूर्ण चीज है उसको महत्वपूर्ण जैसे रखना है। Putting first thing first. जो पहली चीज है आपकी प्राथमिकता है उसको पहले रखना। That's a secret of priorities. यही रहस्य है प्राथमिकता का। In South India we say you don't put the cart before the bullock. हम दक्षिण भारत में ये कहते हैं कि हम बैल को जो है उसकी आगे बग्गी से नहीं रखते हैं। You put the bullock and then you put the cart behind it. आप बैल को पहले रखते हैं तब उसकी बग्गी पीछे रखते And हैं। so our priority is what drives us and the priority is what helps us to move forward. इसलिए प्राथमिकताएं हमारे जीवन की मदद करती हैं, हमारी सहायता करती हैं कि हमको आगे कैसे So बढ़ना what है। David is showing us here is that God was the main thing in his life. यहाँ पे दाऊद क्या बताना चाह रहा है कि परमेश्वर मेरे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है। God was the priority in his life. वो मेरी प्राथमिकता है यहाँ पर। What I am after here is for us to develop a lifestyle that is centered upon God and a God-centered और life. यहाँ पर हमसे क्या अपेक्षा की जाती है कि हमारे जीवन शैली में हम सिर्फ अपना ध्यान और केंद्र परमेश्वर रखें। When we have God-centered life, we are not worried about the circumstances. जब हमारा मसीही परमेश्वर केंद्रित जीवन होता है तब हम अपनी समस्याओं के ऊपर नहीं चिंता करते। When we are self-centered, we become obsessed about our own comfort, our own priorities. That is when circumstances begin to trouble you. जब हम अपने खुद के केंद्रित हो जाते हैं, स्वयं केंद्रित हो जाते हैं, तब हम हर चीजों के लिए परेशान होने लगते हैं। That's when we lose heart because things are not going well. We become negative and we allow those circumstances to drive our lives. तब हम उन परिस्थितियों में निराश हो जाते हैं, हम कमजोर होने लगते हैं और हम उन परिस्थितियों में बहने लगते हैं। But when we have a life that is centered upon God, we are not going to allow the negative things around us to influence our life. लेकिन जब हमारा जीवन परमेश्वर केंद्रित होता है तब हम अपने आसपास की नकारात्मक बातों को अनुमति नहीं देते कि वो हमारे जीवन में काम करें। Jesus said in Matthew chapter 6 verse 33. यीशु ने मत्ती के 6 अध्याय के 33 पद में ऐसा कहा, Seek first the kingdom of God पहले परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करो and his righteousness, and all these things will be added to you. और सब वो चीजें तुम पे जोड़ ली जाएंगी। Hallelujah. We are to put God first in our life. हमको परमेश्वर को अपने जीवन में पहले रखना है। Amen.
That's why we come together to church on Sunday. इसलिए रविवार में हम सब मिलकर आराधना में इसलिए आते हैं। We put God first on the first day of the week. हम हफ्ते के पहले दिन में परमेश्वर को प्राथमिकता देते हैं। My dear friends, the first day of the week is not Monday. मेरे मित्रों, जो हफ्ते का पहला दिन है वो सोमवार नहीं है। The first day of the week is Sunday. जो हफ्ते का पहला दिन है वो रविवार का दिन है। And we give that day to Jesus. और वो दिन हम परमेश्वर को देते हैं। We give that day to God. वो वाला दिन हम परमेश्वर को देते We हैं। begin the week with God. हम यीशु के साथ अपना हफ्ता शुरू करते हैं, Earnestly. यत्न के साथ। Amen. That means Sunday early morning you get up earlier than other days. इसलिए रविवार के दिन सुबह हमको और दिनों से ज्यादा तड़के उठना चाहिए। Hello, let me hear some amen to that. Amen. We get up earlier than other days और दिनों से on ज्यादा Sunday तड़के रविवार के दिन हमें उठना चाहिए, because I'm earnestly desiring to go to the house of God. क्योंकि मैं यत्न से बहुत अभिलाषी हूँ परमेश्वर के घर That's the जाने के honest लिए। truth in my life. ये मेरे जीवन की बहुत सच्चाई है। Rest of the days I get up at 7 a.m. और दिन मैं 7 बजे उठता हूँ, But on Sunday I get up at 6 a.m. लेकिन रविवार के दिन मैं 6 बजे उठता हूँ। For a person who sleeps in late, that is a big sacrifice. जो व्यक्ति देर में सोता है वो उसके लिए बड़ा बलिदान है। But where your heart is, your passion is, I don't need an alarm on Sunday morning to get up at 6. लेकिन जहां आपका दिल है, जहां आपका लगन है, वहां पर आपको सुबह अलार्म की जरूरत नहीं है। आप 6 बजे अपने आप उठ जाएंगे। My body clock, my body alarm rings at 6 o'clock and says, James, get up. मेरे शरीर के अंदर का अलार्म मुझे कहता है, जेम्स उठ जाओ। Amen? Amen. Or how many of you have mom and dad are coming and shaking you and putting water on your face? Get up, go to church. It's time to go to church. And we have like a India-Pakistan war in the house. आप में से कितने लोगों का ऐसा हाल है कि आपके माता पिता सुबह उठ के आपके मुंह पे पानी डालते हैं और ऐसा लगता है युद्ध छिड़ गया है भारत पाकिस्तान का और आपको उठाना पड़ता है। Just the whole issue of getting ready, you lost your mind by the time you are in the car. Now you don't like singing in the church. Now you don't like praising God because the day started with a bad problem at house. सिर्फ उठाने के चक्कर में जो लड़ाई झगड़ा हुआ है उसमें आपने अपना आराधना करने का मन ही खो दिया है। जब तक आप आराधना आएंगे तब तक आपका आराधना करने का मन नहीं So करेगा। I have taken a policy on Sunday morning. इसलिए मैंने अपने लिए एक नियम बना लिया I है। won't talk till I come to church. मैं बोलूंगा नहीं जब तक मैं कलीसिया ना I जाऊं। remain shut. My mouth is shut. मैं अपना मुंह बंद करके रखूंगा। My तब तक। focus is on my message. मेरा जो केंद्र है वो सिर्फ वचन की ओर है। My focus is on the service. मेरा जो केंद्र है वो सिर्फ आराधना की I'm ओर not है। going to worry who got up, who got ready, what everybody is wearing. I don't want to know. मुझे कोई चिंता नहीं है कौन कितने बजे उठा, किसने क्या पहना है, मेरे को नहीं जानना। Because I know if I put my nose into it, क्योंकि मुझे पता है अगर मैंने अपनी नाक इस बात में घुसा दी I तो won't be able to stand here and preach. मैं यहाँ खड़े होकर प्रचार नहीं कर And so, पाऊंगा। my friends, earnestly put God first in your life. इसलिए मित्रों हमेशा परमेश्वर को यत्न के साथ प्राथमिकता दें। Psalm 27, verse 4. भजन संहिता 24 का 4था अध्याय, The psalmist says, 27 का 24। One thing I have desired of the Lord, भजनकार कहता है एक चीज है जो मैं जिसकी इच्छा रखता that हूँ, I will seek after, जिसके लिए मैं खोज करता that रहूंगा, I may dwell in the house of the कि Lord मैं परमेश्वर के भवन में पाया जाऊं all the days of my life. अपने जीवन भर के लिए। Hallelujah. Amen. How many of Hallelujah. you have made a resolution at the beginning of this year? I will not miss a single church service on Sunday morning. आप में से कितने लोगों ने ये अपने जीवन में निर्णय लिया है इस साल की शुरुआत में मैं कोई भी रविवार नहीं छोड़ूंगा। Hallelujah. Hallelujah. Let that be a New Year resolution. ये होने पाए हमारा नया साल का निर्णय हो जो हम It's लिए। not too late. We only got into 3 months. अभी बहुत ज्यादा देरी नहीं हुई है। You can do it for the remainder of the month. हम आने वाले महीनों के लिए निर्णय ले Today, सकते हैं। decide today. आज निर्णय ले लें। Unless the government of Punjab says that we have a lockdown, जब तक हमारा पंजाब का सरकार ये ना कह दे कि लॉकडाउन है, I will come to the church. मैं रविवार में आराधना में आऊंगा। Amen. My dear friends, go to places where church is not allowed. मेरे मित्रों उस जगहों में ना जाए जहां पर कलीसियाएं को अनुमति नहीं है। Go to China. आप
चाइना में जाएं, and see how the people are hungry for God, आप चीन में देखें कि लोग परमेश्वर के लिए कैसे भूखे हैं, and see how they worship the Lord underground. और देखिए कि कैसे वो निचले स्थानों पर आराधना कर रहे हैं They go परमेश्वर to की। church midnight वो मध्य रात में आराधना के लिए जाते because they हैं, don't want to be caught by the government. क्योंकि वो सरकार के द्वारा पकड़ा जाना नहीं And चाहते हैं। yet, hundreds and thousands of people, the fastest church growth today is taking place in और China. फिर भी हजारों में लोग जो हैं कलीसिया में आराधना करते हैं, और इतने ज्यादा लोग चाइना में पाए जाते There is हैं। more people coming to faith in China than anywhere else. चीन में सबसे ज्यादा लोग विश्वास में आ रहे हैं, ऐसा जैसा कहीं नहीं, Hallelujah. Because they are hungry for fellowship. क्योंकि वो संगति के लिए भूखे They're हैं। hungry for coming together to study the word. वो एक साथ मिलकर परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए भूखे हैं। Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Notice what David says here. देखिए यहाँ पर दाऊद क्या कहता है, One thing I decide. एक चीज मैं परमेश्वर से इच्छा रखता So हूँ। let me ask you today, इसलिए मैं आपसे आज पूछना चाहता हूँ, what is your priority? आपकी प्राथमिकता क्या है? You know, many times we are managing we are living in a lifestyle of multitasking. हम कई बार ऐसे जीवन में रह रहे हैं जहां हम बहुत प्रकार के काम कर रहे हैं एक साथ। Even when we come to church, we are multitasking जब हम कलीसिया में भी आ रहे हैं तब भी हम बहुत प्रकार के काम कर रहे हैं, because we don't know what people are doing on their phones. क्योंकि हमें ये नहीं पता है कि लोग अपने फोन में क्या कर रहे हैं। You could be talking to somebody. शायद आप किसी और से बात कर रहे You हो, could be buying and selling shares in the share market sitting in the church. शायद आप कलीसिया में बैठ के अपना जो है व्यापार कर रहे होंगे देने लेने का, Maybe you're watching online, but you're taking shower. लेकिन शायद आप ऑनलाइन देख रहे होंगे लेकिन नहा रहे होंगे। You're multitasking. आप बहुत सा काम एक ही बार में कर रहे हैं। Is this what David says? क्या ये बात यहाँ पर दाऊद कह रहा है? No, he says, one thing I do. नहीं, दाऊद कह रहा है एक चीज मैं करता हूँ। My dear friends, when it comes to the things of God, let's give ourselves wholeheartedly to the Lord. मित्रों, जब ये बात परमेश्वर के बारे में आती है तो अपना पूरा हृदय उस कार्य के लिए दे दो। Turn to Philippians chapter 3, verse 13. फिलिपियों की पत्री उसका 3 अध्याय का 13वां पद पढ़ते हैं। Here Paul says, यहाँ पर पौलुस कहता है, brothers, I do not consider that I have made it my own, but one thing I do, forgetting what lies behind and straining forward to what lies ahead, I press toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. हे भाइयों, मेरा भावना ये नहीं है कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल ये है कि एक काम करता हूं कि मैं तेरे पीछे कि जो बातें पीछे रह गई हैं उसको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता जाऊं। Paul was a businessman. पौलुस जो था वो एक व्यापारी था। He was an apostle of the Lord Jesus वो Christ. परमेश्वर यीशु मसीह का प्रेरित था। He was a businessman making lots of money. वो बहुत सा पैसा कमाता था अपने व्यापार के द्वारा। He was also raising money from the Gentiles and taking it back to the Jews. वो अन्य जातियों से पैसा कमाता था और जाकर वो यहूदियों को देता He था। was starting churches in all the major cities of that day. वो उस समय की बड़ी-बड़ी जगहों में जाकर कलीसियाओं को निर्माण कर रहा था। He was a busy man traveling. वो बहुत ही व्यस्त व्यक्ति था, हमेशा यात्रा कर रहा था। But he says, लेकिन वो कहता है, one thing I do. मैं एक चीज करता हूँ, One thing I do. बस एक चीज मैं करता How हूँ। many of you can say with your heart on your chest and say with your hand on your chest and say one thing I do? आप में से कितने लोग अपनी छाती पे हाथ रखकर कह सकते हैं, एक चीज है जो मैं कर सकता हूँ, And that is God. और वो परमेश्वर है। One thing I do. एक चीज मैं करता हूँ, I love God. मैं परमेश्वर से I प्रेम love करता हूँ। God with all my heart. मैं अपने पूरे दिल से परमेश्वर से प्रेम करता हूँ। Amen. One Amen. more passage. एक और पद, Do you remember the story about Mary and Martha? क्या आपको वो कहानी पता है मरियम और मार्था की, In the Gospel of Luke chapter 10, जो हम लूका रचित सुसमाचार के 10वें अध्याय में पढ़ते हैं। there was Mary मरियम थी and she was at the feet of Jesus और वो यीशु के चरणों में बैठी थी and just listening to what Jesus has to say. और वो बस ये सुन रही थी कि यीशु को उससे क्या बातें करनी But है। there was Martha. लेकिन मार्था भी थी वहां She पर। was busy serving Jesus, doing things. वो कार्यों में व्यस्त थी कि किसी तरह से यीशु की सेवा करे। And Martha had a complaint. और मार्था को एक शिकायत थी। She said, my sister, she can come and help serve as well. वो शिकायत ये कर रही थी कि मेरी बहन आकर मेरी मदद कर सकती है, But she's just sitting there wasting her time. लेकिन बस वो बैठी है और समय बर्बाद कर रही है। What did Jesus say to this woman? यीशु ने क्या कहा मार्था को? What did Jesus say? यीशु ने क्या कहा? One thing is needed. एक चीज अवश्य है। One thing is needed. एक चीज अवश्य है। The one thing
वो एक चीज, What is the one thing that Jesus said that you need, Martha? एक चीज वो क्या है मार्था जो तुझे भी चाहिए है? One thing is your eternal life. वो तेरा एक अनंत काल का जीवन है। One thing is that good part. वो अनंत काल जो तेरा जो अच्छा भाग है वो तेरा अनंत काल One है। thing that will not be taken away from her. एक चीज जो तुझसे कभी भी छीना नहीं जाएगा। If you had to pack a single word that explains our society today, अगर कोई एक शब्द है जिसके द्वारा आज का समाज हम बता सकते हैं तो and that word is pressure. वो है दबाव। Turn to your neighbor and say pressure. अपने पड़ोसी को मुड़कर बोले दबाव। We are under pressure. हम एक दबाव में हैं। We are all under pressure in some way or the other. हम सब लोग किसी न किसी दबाव में हैं। A 5-year-old, एक 5 साल का, we thrust him into a school हम उसको धक्का मार देते हैं स्कूल में, where this 5-year-old has to learn all kinds of stuff. जहां पर उसको हर प्रकार की चीजों को पढ़ना पड़ता है। He had the pressure to perform at an academic level. ऊपर एक दबाव है कि वो अपनी पढ़ाई के स्तर में बहुत अच्छा सा करे। He had to compete in getting A plus all the time. उसको हमेशा कोशिश करनी है कि वो अपनी पढ़ाई में A+ लेकर आए। We join athletic teams or sports teams and we have more pressure to excel. जब हम खिलाड़ियों के बारे में देखते हैं तो हम पाते हैं कि उनको भी अपने हर कार्य में उत्तीर्ण होना है। When I go to gym to work out with my son, जब मैं जिम जाता हूँ और कार्य करता हूँ अपने बेटे के साथ, I'm under pressure because my son is always watching me. मैं बहुत ही ज्यादा एक दबाव में हूँ क्योंकि मेरा बेटा मुझे हमेशा देखता He रहता है। says, Dad, you can do it. मेरा बेटा मुझसे कहता है Says, पिताजी आप कर Son, सकते हो। you don't know how old I am. मैं अपने बेटे से कहता हूँ तुमको नहीं पता मैं कितना He बुजुर्ग हो thinks चुका I can do what a 20-year-old can do. हूँ। वो सोचता है कि एक जो 20 साल का कर सकता है मेरा पिताजी भी कर सकता This है। pressure, wherever you go, you are under pressure. एक दबाव है, हम जहाँ कहीं भी जाते हैं वहां पर दबाव है। We face the pressure of getting into a university or a college. हम कोई कॉलेज में जाने के लिए और अध्ययन आगे पढ़ाई करने के लिए भी हमको एक दबाव We होता have the है। pressure of getting a good job. हमको एक नौकरी पाने के लिए भी बहुत दबाव And होता है। once you get the job, और जब हम नौकरी पा लेते हैं you have the pressure of performing well and getting promotions and getting salary increase. आपको जो है ये दबाव होता है कि आप कैसे उस नौकरी को अच्छे से करें, उन्नति पाएं और कमाएं। Then there is family pressure. फिर परिवार का दबाव होता It है। was all honeymoon till the first baby came. जब तक पहला बच्चा नहीं होता हर चीजें हनीमून जैसे लिखती हैं। Now you got to wake up at 2 a.m. in the morning अब आपको सुबह सुबह 2 बजे उठना है and the wife is complaining और बीवी जो है वो शिकायत कर रही because है she hasn't slept for 3 days क्योंकि वो 3 दिन से सोई नहीं है and you want her to cook your meal और आप चाहते हो कि वो आपके लिए खाना बनाए and do all the other और things. हर चीजें कर ले, And so there is pressure. इसलिए वहां पर भी एक दबाव है। Maybe you are at a certain age. और आप शायद एक कुछ उम्र में पहुंच चुके हैं। Everybody is asking, when are you getting married? सब आपसे पूछ रहे हैं कि आप कब शादी करोगे। You are under pressure. आप तभी भी दबाव I में need to हो। find a woman. आपको एक स्त्री को पाना है। Pressure. दबाव, In the midst of all these इन pressures, सब दबाव के बीच में there is one thing that will demonstrate the course of your life. एक चीज है जो बताएगी कि हमारे जीवन का क्या There is इच्छा है। one thing that will demonstrate the course of your life. एक चीज है जो आपके जीवन के कर्म को बताएगी। David knew दाऊद जानता था what it means to live under pressure. क्या मतलब होता है एक दबाव के नीचे रहना। But in the midst of the pressure cooker, लेकिन उस एक दबाव के नीचे रहने के समय David said, दाऊद ने ऐसा there कहा, is one thing I want, एक चीज है जो मैं चाहता हूँ that I want to earnestly seek. और उसके लिए मैं यत्न भी करता That हूँ, is God. वो परमेश्वर है। My dear friends, how many of you will say, मेरे प्रिय मित्रों, आप में से कितने लोग ऐसा Lord, कहेंगे, give me that one thing that I need? परमेश्वर मुझको बस वो एक चीज दे दे जो जिसकी मुझे Is जरूरत है। God the main thing of your क्या life? परमेश्वर हमारे जीवन का मुख्य है? Is He the priority of your क्या वो life? हमारी प्राथमिकता है? David sought God first. दाऊद ने परमेश्वर की पहले खोज He करी। put God first in his life. उसने अपने जीवन में परमेश्वर को प्राथमिकता I दी। wonder how often we begin our days with prayer. मैं कभी सोचता हूँ कि हम में से कितने लोग अपना दिन प्रार्थना के साथ How शुरू करते wonder हैं। how often we begin doing something with God in our mind. क्या हम कई बार, मैं सोचता हूँ हम में से कितने लोग अपने दिमाग में भी परमेश्वर के बारे में पहले सोचकर कुछ कार्य शुरू करते The हैं। devil is so cunning and conniving to keep us under pressure and to neglect and put God aside on the corner. शैतान कई बार इतना चतुर है, चालाक है कि वो हमको ऐसे हमारा दबाव डालता है कि हम हर चीजों को कोने पे कर देते हैं। Hallelujah. Our God is a God who wants to have fellowship with you. हमारा परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जो हमारे साथ संगति रखना चाहता है। Hallelujah. Hallelujah.
You know, I'm not saying that 24/7 you need to keep whispering hallelujah, praise the Lord, and whatever, you know, every second minute. मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि हमेशा 24 घंटे बस आप हालेलुया ही बोलते रहें, परमेश्वर तेरी स्तुति हो यही बोलते I रहें। know people who says hallelujah and praise the Lord because they got nothing else to pray about, nothing else to preach. मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ, कई लोग सिर्फ हालेलुया प्रभु तेरी स्तुति बोलते रहते हैं क्योंकि उनको आगे प्रचार करना नहीं आता, प्रार्थना And in करनी the नहीं process आती। of that, they lost the meaning of what, they don't even know that they are saying hallelujah or praise और the Lord. ऐसा बोलते बोलते वो ये भी नहीं समझ पाते हैं कि वो मतलब क्या होता है बोलने का। Have you seen people in a span of 1 minute, they will say 20 hallelujah, आपने 20 कहीं praise ऐसे the Lord. लोगों को देखा है कि 1 मिनट के दौरान में वो 20 बार हालेलुया बोल देते हैं। In finishing one sentence, they have to put 20 amens in between. आप एक वाक्य खत्म होने से पहले उनको 20 बार आमीन बोलना है। That is religion. वो धर्म है। And in that utterance of the word of religious words, there is no meaning. और जो ऐसे धार्मिक शब्दों को बोलना है, बार बार दोहराना है, उसका कोई अर्थ नहीं होता। But I am talking about prioritizing our relationship with लेकिन God. मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि हमको अपने संबंधों में परमेश्वर को प्रथम स्थान That देना brings है। me to the second point I want to share with you. यहाँ मुझे दूसरे बिंदु में मैं आता हूँ। And that is my desire. दूसरी बात, मेरी इच्छा। What is my greatest desire? क्या मेरे जीवन का सबसे बड़ी इच्छा है? Again, look at verse 1. फिर हम दोबारा से पहले पद को देखते हैं। David says, "Oh God, you are my God. दाऊद कहता है, हे परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर है, Earnestly I seek you. मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। My soul thirsts for you. मेरा मन तेरा प्यासा है। My flesh faints you as in a dry day and weary land where there is no water." और मेरा शरीर तेरा अभिलाषी है जैसे एक सूखी निर्जल भूमि पर हो। I think David was in this wilderness दाऊद एक मरुभूमि की अवस्था में था and he looked around and he see there's no water. और सब तरफ वो देखता है बंजर भूमि में कि पानी नहीं है। And in this metaphor, he is drawing from his own experience and drawing out the analogy और here. यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वो एक रूपक इस्तेमाल कर रहा है ये पता लगा बताने के लिए अपनी Oh भावनाओं को। God, हे परमेश्वर, he knew that his physical body was parched. उसको पता था कि उसका जो शारीरिक जो उसका शरीर है वो सूख चुका है। His physical body needed water, उसका शारीरिक जो जीवन है उसको पानी चाहिए था। but he is not crying out for water for his quench लेकिन of thirst. वो अपनी प्यास के लिए पानी के लिए नहीं रो रहा है, He is crying out वो रो रहा है for his spiritual, for his soul anatomy. वो अपनी आत्मा के लिए रूपक रूप से रो रहा है। Oh God, हे परमेश्वर, my soul is parched. मेरा जो प्राण है, मेरा मन है वो प्यासा है। I thirst for you. मैं तेरे लिए प्यासा हूँ, I need you, O God. मुझे तेरी जरूरत है परमेश्वर। Saint Augustine said, अगस्टिन करके एक जो हुए उन्होंने ऐसा the कहा, whole life of a good Christian is a holy desire. एक मसीही, एक अच्छे मसीही का पूरा जीवन एक पवित्र इच्छा होती Let me है। say that again. एक बार दोबारा से दोहराना चाहता The हूँ, whole life of a good Christian is a holy desire. एक अच्छे मसीही का पूरा जीवन एक पवित्र इच्छा होती How है। many of you know that desire is the motivational driving engine of our life? आप में से कितने लोगों को पता है कि इच्छा रखना ही हमारे जीवन को दिशा निर्देश देती है आगे बढ़ने के लिए। If you desire food, अगर आपको खाने की इच्छा है, where will you go? आप कहाँ जाएंगे? If you desire food, अगर आपको खाने की इच्छा है, when I was a kid, जब मैं छोटा था, if I desired food, अगर मुझे खाने की इच्छा you know थी, what I do? पता है आपको मैं क्या We करता run था? to the farm हम जो है बाग में भाग where जाते we have थे, fruit trees. जहाँ पे हमारे फलों के पेड़ होते थे, Because in our days we had no fridge. क्योंकि हमको हमारे टाइम में फ्रिज नहीं होते थे। But in our today's society, लेकिन आज के समाज में when you're hungry, जब आपको भूख लगती where है, do you run? आप कहाँ भागते हैं? The fridge, right? फ्रिज। We hear some sound at 2 a.m. sometimes in our house. हम कभी-कभी 2 बजे भी सुबह उठकर अपने फ्रिज की आवाज सुनते हैं। I don't know, maybe some cats entering our house. क्या पता बिल्ली घुस गई है हमारे घर में। Because when you're hungry, you run to the क्योंकि fridge, जब आपको भूख लगी है तो आप अपने फ्रिज की ओर भागते हैं। right? सही बात है। But David says, लेकिन दाऊद कहता है, I thirst for God. मेरा मन परमेश्वर के लिए प्यासा है। Psalmist further says, as the deer panteth for a flowing streams of water. जैसे भजनकार ऐसा कहता है, जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है।
My soul longs for you. मेरा मन भी तेरे लिए हाँफता है। How many of you know that deers, they like to drink water that is in a stream rather than a stranded water? आप में से कितनों को पता है कि हिरन लोगों को जो है एक बहता हुआ पानी चाहिए, ऐसा नहीं जो रुका हुआ हो। They want streams of water that is clean, that is healthy, that's good for them. उनको एक ऐसा पानी चाहिए जो झरने के समान बहता हो, जो उनके लिए अच्छा हो। And God's presence is a place where you get streams of living water. और परमेश्वर का भवन एक ऐसी जगह है जहां पर हमको पानी की नदियां फूट निकलती हैं। Psalm 73 verse 25 is another wonderful parallel passage. 63 भजन संहिता वो भी एक अच्छा पद है हमको पता लगाने के लिए। Psalmist says, "Whom have I in heaven but you? And there is nothing on earth that I desire और beside यहाँ पे you." 25वें पद में भजनकार ऐसा कहता है, स्वर्ग में मेरा और कौन है, और तेरे संग रहते हुए पृथ्वी पर और कुछ मैं नहीं चाहता। Friends, it's a desire for God that is so great, it's greater than any other desire. मित्रों, ये हमारे जीवन की इच्छा है जो सबसे बड़ी इच्छा है, इसके अलावा हम और कुछ इच्छा नहीं And रखते। that's why David says, "My soul longs for you. इसलिए दाऊद कहता है, मेरा प्राण तेरे लिए My अभिलाषी है, flesh faints for you." मेरा शरीर तेरा अभिलाषी है। Hallelujah. It's a Hallelujah. longing for God. ये एक अभिलाषा है परमेश्वर के He लिए। belonged to God. हम परमेश्वर के He हमारा aches for God. हम जो है उसको दर्द है उसको पाने के लिए। Hallelujah. हालेलुया। I want you to fill in this blank in your life. मैं चाहता हूं कि आप एक रिक्त स्थान की पूर्ति करें। Jesus plus dash. यीशु प्लस उसके बराबर कौन? Dash आगे रिक्त स्थान equals उसके बराबर happiness for me. वो मेरे लिए खुशी है। Okay? I want you to fill in the blanks for me. मैं चाहता हूं कि आप उस रिक्त स्थान, खाली स्थान को भरें। I won't ask you to tell me what you filled in right there. मैं आपसे नहीं पूछूंगा कि आपने उस खाली स्थान में क्या भरा। But I want you to fill in. मैं चाहता हूं लेकिन आप उसको भरें। Jesus यीशु and और dash खाली स्थान means happiness for me. उसके बराबर वो मेरे लिए मेरी खुशी है। How many of you had put something there in that balance, in आप that में से blank? कितने लोगों ने उस खाली जगह में कुछ भरा है? If it is not the word nothing, अगर वो शब्द कुछ नहीं है तो then there is a problem. फिर कुछ समस्या है। If you put something else other than the word nothing, अगर आप उस खाली स्थान पे ये लिख रहे हैं कुछ नहीं, because there is only one thing that gives us true joy and happiness, क्योंकि सिर्फ एक ही चीज है जो हमको सच्ची खुशी और सच्चा आनंद दे and सकती है, that is Jesus and nothing else. वो सिर्फ यीशु है और कुछ नहीं। Jesus and nothing else यीशु और कुछ नहीं equals happiness for me. उसके सामान्य खुशी देने के लिए। How many of you can say that this morning? आज सुबह आप में से कितने लोग ये कह सकते हैं? Jesus and nothing else equals happiness for me. यीशु और उसके समान कोई नहीं जो खुशी दे सकता है। If you cannot avoid something else, maybe you put food there. शायद आपने उस जगह में कुछ ना लिखकर खाना लिख दिया है। Jesus and food. यीशु और खाना, Or maybe Jesus and my wife. यीशु और मेरी पत्नी, Or Jesus and my car. यीशु और मेरी कार, Or Jesus and my phone. यीशु और मेरा फोन। I don't know what you put there. मुझे नहीं पता कि हम वहां पर क्या भरेंगे। It is that very thing that is taking you away from God. वो वैसी चीज है जो हमको परमेश्वर से दूर ले जा रही है। The Bible says you need to devote yourself fully to God. बाइबल कहती है हमको पूर्ण रीति से अपने आप को परमेश्वर के ऊपर समर्पित So होना this है। morning let me ask you, इसलिए आज सुबह आपसे पूछना चाहता do हूँ, you desire God? क्या आप परमेश्वर के लिए इच्छा रखते Do you हैं? prioritize Him? क्या आप उसको प्राथमिकता Do you देते हैं? desire Him? क्या आप उसके लिए इच्छा रखते हैं? And the third question I want to और pose before तीसरा you. प्रश्न आपके सामने रखना चाहता हूँ, What do you worship? आप किस चीज की आराधना करते हैं? What do you worship?
किस चीज की आप आराधना Look at करते verse हैं? 3 to 5. तीसरे पद से लेकर 5वें पद Psalm तक देखें। 63 verse 3 to 5. 63वां भजन संहिता उसका तीसरा पद से लेकर 5वें पद Because तक। your steadfast love is better than life, क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम my है, lips will praise you. मैं तेरी प्रशंसा करूंगा। So you see here, David is praising God. यहाँ दाऊद परमेश्वर की प्रशंसा कर रहा He है, is worshiping वो God. परमेश्वर की आराधना कर रहा Look at है। verse 4. चौथा पद देखिए, So I will bless you as long as I live. इसी कारण मैं जीवन भर तुझे धन्य कहता रहूंगा, In your name I will lift up my hands. और मैं तेरे नाम से अपना हाथ उठाऊंगा। Look at verse 5. 5वां पद देखें, My soul will be satisfied as with fat and rich food, and my mouth will praise you with joyful lips. मेरा जीव मानो चर्बी और चिकने भोजन से तृप्त होगा, और मैं जय जयकार कर कर तेरी स्तुति करूंगा। Here David is saying, my lips will praise you. यहाँ पर दाऊद कह रहा है, मैं तेरी जय जयकार करूंगा, I bless you as long as I मैं live. जब तक जीवित रहूंगा तुझे धन्य कहता My रहूंगा। mouth praise you मेरा- with joyful lips. मेरा मुंह जो है, मेरा जीव जो है, वो आनंद के साथ तेरी आराधना करेगी। Did you know the most repeated command in the Bible is praise the Lord? बाइबल में सबसे ज्यादा एक आज्ञा दी हुई बात जो बार बार दोहराई गई है, वो ये है परमेश्वर की आराधना करना। More than anything else, the Bible commands us to worship God. और सब चीजों से हटकर बाइबल हमें आज्ञा देती है, हमें परमेश्वर की आराधना करनी है। So much so in the church historians in the Westminster Catechism, they put worship as the ultimate goal, ultimate joy, ultimate happiness of a person's life. कलीसियाई इतिहास में सबसे ज्यादा अगर किसी में जोर दिया गया है बात का, तो वो ये है कि हमको परमेश्वर की आराधना करनी है। The chief end of man is to glorify God forever. मनुष्य का जीवन का जो मुख्य अंत है, वो ये है कि हमको हमेशा परमेश्वर को महिमा देनी है। My dear friends, God made you to glorify God. मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर ने हमारी रचना करी है कि हम परमेश्वर को महिमा दें। God made you to worship God. परमेश्वर ने आपको सिरजा है कि हम परमेश्वर की आराधना करें। And David praised और God. दाऊद परमेश्वर की आराधना He करता है, worshipped God. वो परमेश्वर को महिमा देता I है। want you to look at the characteristics of that worship. मैं चाहता हूं कि आप यहाँ पर इसके गुण को देखें। It's an active worship. ये एक चलने वाली आराधना है। He says, I will bless you as long as I live. यहाँ पर ऐसा लिखा है, जब तक मैं जीवित रहूंगा मैं तेरी आराधना करूंगा। What does that mean? उसका क्या मतलब है? To worship God as long as you live. क्या मतलब है इसका कि मैं जब तक जीवित रहूंगा मैं तेरी आराधना करूंगा। Every breath, हर सांस में, every breath हर सांस में that I take, जो मैं लेता हूँ, every breath that I release जो भी सांस में छोड़ता हूँ, is an offering of worship to वो God. परमेश्वर के लिए एक आराधना बलिदान है। Are you listening to me today? क्या आप मुझे सुन रहे हैं आज Are you सुबह के listening समय? to the word of God क्या today? परमेश्वर के वचन को आज सुबह सुन रहे हैं? Every breath that I have, जो भी सांस मेरे अंदर है, every life that I have, जो भी जीवन मेरे अंदर है, I will worship God. मैं परमेश्वर की आराधना David करूंगा। is saying, as long as I have breath in this nostril, I will worship God. दाऊद कह रहा है, जब तक मैं जीवित रहूंगा, जब तक मेरे नथनों में सांस है, मैं परमेश्वर की आराधना करूंगा। Hallelujah. 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 And then it's also a verbal worship. और यहाँ पर एक मुंह के द्वारा की गई भी आराधना है। He says, I will worship God with my mouth. यहाँ पर ऐसा कहता है कि मैं अपनी जीभ से परमेश्वर की आराधना करूंगा। What happens when you start using your lips? क्या होता है जब आप अपनी जीभ को इस्तेमाल करते हैं? Some of you are keeping your lips for I don't know what. मुझे नहीं पता आप में से कई लोग अपनी जबान किस चीज के लिए रखते हैं। Lips is good. जबान अच्छी है, It's good for eating food. वो बहुत अच्छा है खाना खाने It के is लिए, good for kissing. वो प्यार करने के लिए बहुत अच्छा है। It is good to make you look good with some lipstick on it. आप उसमें कुछ लगा लेते हैं, वो देखने के लिए अच्छा But है। if our lips are not used for praising God, it is useless. लेकिन अगर हमारी जबान परमेश्वर की महिमा के लिए नहीं है, हमारे होठ, तो वो किसी काम की नहीं है। Worship needs to be verbalized. हमारी स्तुति जो है वो मुंह से निकली जानी Out of चाहिए the है। abundance of your heart, your mouth speaks. हमारे दिल की गहराई से हमारे मुंह की शब्द If there निकलते is हैं। praise in your heart, अगर your lips cannot keep quiet. अगर आपके मन में आराधना है तो आपका मुंह चुप नहीं होगा आराधना And करने के Jobin, when लिए। he comes to lead us, I hear him say again and again, जोबिन जब यहाँ पर आराधना के अगुवाई के लिए आते, वो हमसे बार बार कहते हैं, you didn't come here to keep quiet. आप यहाँ चुप रहने के लिए नहीं आए हैं। Can I hear an amen today? Amen. Amen.
You came here to make a noise. हम यहाँ पर आवाज करने के लिए आए हैं। You came here to make a lot of noise. आप यहाँ पर बहुत सी आवाज करने के लिए Why? आए हैं। क्यों? Because you love God. क्योंकि आप परमेश्वर से प्रेम करते You हैं। just want to praise Him. आप उसकी आराधना करना चाहते You just हैं। want to shout His praise आप चिल्लाना चाहते हैं and उसकी say, स्तुति। God, you are great. और आप परमेश्वर से कहना चाहते हैं, God, you परमेश्वर are तू महान है, mighty. परमेश्वर तू अद्भुत है, God, you are awesome. परमेश्वर तू प्यारा है, God, you are worthy. परमेश्वर तू योग्य है, God, you are holy. परमेश्वर तू पवित्र है। There are so many things to worship God for. कई कई ऐसी बातें हैं जो हमारे पास है परमेश्वर की आराधना करने के लिए। Hallelujah. हालेलुया। Your breath praise God. आपकी सांस से परमेश्वर की आराधना Your करें, lips praising God. आपके होठ परमेश्वर की आराधना करें। Library church, come ready to make a noise. लाइफ ब्रिज कलीसिया तैयार होकर आए आवाज करने के लिए। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। We all have noise. हम सबों के पास We all आवाज have है। voice box. हमारे पास सबों के पास I आवाज know है। I'm not the greatest singer on the planet, मुझे पता है कि मैं इस पृथ्वी में बहुत अच्छा गायक नहीं हूँ, but my God loves my singing. लेकिन मेरे परमेश्वर को मेरा गाना पसंद है। So much so, He decides to live the angelic singing in heaven. इतना ज्यादा पसंद है कि स्वर्ग में से स्वर्गदूत छोड़कर आते हैं, He will come down. वो नीचे आते हैं। And the Bible says, और बाइबल कहती है He is seated on the praises of God's people. वो परमेश्वर के लोगों की आराधना की My स्तुति में friends, विराजमान है। your voice is keeping as the chair for your King Jesus. आपकी आवाज, आराधना की आवाज परमेश्वर के लिए एक सिंहासन को बनाती है। And so if you don't praise Him, इसलिए आप परमेश्वर की अगर आराधना नहीं you're करेंगे, not building a throne for your Jesus in your life. अगर आप परमेश्वर के लिए फिर एक सिंहासन का निर्माण नहीं What कर do रहे you हैं, worship? आप क्या आराधना करते हैं? What do you get excited about? किस चीज के लिए आप बहुत उत्तेजित हो जाते हैं? What makes you get out of bed and shout? किस चीज के, कौन सी ऐसी चीज है जो आपको बिस्तर से उठाती है और आप चिल्लाते हैं? What kind of songs are you singing in the shower? कौन से वो गीत हैं जो आप नहाने के समय गाते हैं? Let me challenge you मैं आपको चुनौती देना चाहता to हूँ, search your heart. अपने हृदयों को खोजें। Have you lost your first love? क्या आपने परमेश्वर के साथ अपना पहला प्रेम Do you छोड़ have दिया praises है? on your lips for God? क्या आपके जबान में, आपके मुंह में परमेश्वर के लिए स्तुति है? David says, my mouth will praise with joyful lips. दाऊद कहता है, जय जयकार के साथ मेरा जीव तेरी स्तुति करेगा। Unless and until our worship is vocalized, जब तक हमारी आराधना हमारे मुंह से नहीं निकलेगी, it is not worship. वो आराधना नहीं है। It is also visible. वो दिखती भी है, It is also visible. वो दिखती भी है। David says, I will lift up my hands. दाऊद कहता है, मैं अपने हाथों को उठाऊंगा। How many of you hold hands? आप में से कितने लोगों के पास हाथ है? This is to be used. ये इस्तेमाल होने हैं। It is good for eating food. ये बहुत अच्छा है खाना खाने के It is लिए। good for driving the car. ये बहुत अच्छा है गाड़ी चलाने We के can लिए। use this hand for a lot of things. आप ये हाथ अपने बहुत से कामों के You लिए can यूज use this करते हैं। hand to bless somebody. आप अपना हाथ दूसरों को आशीष देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। Maybe you can use this hand to give a slap to somebody too if you're angry. कभी कभी अगर आप क्रोधित हैं तो ये हाथ हम दूसरों को मारने के लिए भी इस्तेमाल कर I सकते hope हैं। you don't do that. मुझे आशा है कि आप ऐसा नहीं करते हैं। But when we lift our hands to God, लेकिन जब हम अपने हाथों को परमेश्वर के लिए उठाते हैं, you know, when I was in school, जब मैं स्कूल में था when the teacher asked the question, और जब टीचर ने मुझसे एक प्रश्न पूछा हो, if I knew the answer, अगर मुझे उसका उत्तर पता होता था, I would put my hand up first. मैं एकदम से अपने हाथों को ऊपर But if उठाता I था। don't know the answer, लेकिन अगर मुझे उत्तर नहीं पता होता था, I act like I know the answer. लेकिन मैं ऐसे दिखाता था कि मुझे तो उत्तर पता है, But I don't have the courage to put my hand up. लेकिन मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं अपने हाथ Let me उठा ask दूं। you, how many of you know the answer? आप में से कितने लोगों को उत्तर पता है? मैं How आपसे many of you पूछना know the चाहता answer? हूँ, आप में से कितने लोगों को उत्तर पता है? Jesus is the answer. यीशु उत्तर है। Raise your hands for him. अपने हाथों को उसके लिए उठाएं। Amen. Amen. I know the answer. मुझको उत्तर पता I है। can raise my both hands. मैं अपने दोनों हाथों को उठा सकता हूँ। My friends, worship is visible. मेरे मित्रों, हमारी आराधना दिखती है, That's why we come together. इसलिए हम एक साथ आते हैं। When I see you lifting your hands, जब आप लोग, अब मैं देखता हूँ अपने हाथों को उठाते हैं, I get charged. मैं एकदम से उत्तेजित हो जाता हूँ। Maybe I didn't feel like worshiping today, शायद मेरे को आराधना करने का आज सुबह मन नहीं था, but I saw Christina. लेकिन मैंने क्रिस्टीना को देखा। Oh, if Christina can praise God, क्रिस्टीना जो है परमेश्वर की स्तुति कर रही है, I too should. मुझे भी करना So I चाहिए। put my hand up. तो मैं भी अपने हाथों को उठा लेता Right? हूँ।
And suddenly I feel my burden is gone. और एकदम से मैं महसूस करता हूँ मेरा बोझ हल्का हो Suddenly गया। I feel something has happened to me. एकदम से मैं महसूस करता हूँ मुझे कुछ हो रहा है। Amen. आमीन। David says, I lift up my hands. दाऊद कहता है मैं अपने हाथों को उठाऊंगा। Where does my help comes from? मेरी सहायता कहाँ से आती My है? help comes the maker of the heavens and मेरी the earth. सहायता उस सृष्टिकर्ता से आती है जो आकाश My और dear पृथ्वी का friends, करता है। God wants to be glorified. मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर हमारी महिमा चाहता He's a है। jealous God. वो जलन रखने वाला He परमेश्वर doesn't है। want to share His glory with anybody. वो अपनी महिमा को किसी के साथ बांटना नहीं He चाहता। doesn't want you to take His glory. वो नहीं चाहता कि आप उसकी महिमा ले लें। He created us उसने हमको बनाया to manifest His glory through us. कि हमारे द्वारा वो अपनी महिमा प्रकट करे। And when we worship और God, जब हम परमेश्वर की आराधना करते the हैं, glory of God comes upon you. परमेश्वर की महिमा हमारे ऊपर उतर The आती है। power of God comes upon you. परमेश्वर की सामर्थ हमारे You ऊपर get उतर आती wisdom है। and anointing in your life. हमको बुद्धि मिलती है और अभिषेक मिलता है You हमारे get the जीवन power of में। God in your life. परमेश्वर की सामर्थ हमारे जीवन में And you मिलती है। begin to do things that you have never imagined और possible. जो कुछ आप कर नहीं पाए आज तक वो आप करने की शक्ति You मिलती are है। an outstanding CEO in your आप business. अपने व्यापार में बहुत ही एक उत्तीर्ण सीईओ बन जाते Your हैं। sales will go up. आपका जो आप बेचते हैं वो बहुत तरक्की करता है। Your salary is going to be increased. आपका जो वेतन है वो बढ़ जाता है। Do you know why? क्यों? आपको पता है Because कैसे? you are doing things in the supernatural realm. क्योंकि आप एक अद्भुत एक स्थान में परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। Tap into the glory of God. परमेश्वर की स्तुति महिमा में कदम रखें। Tap into the power of God. परमेश्वर की सामर्थ पे कदम रखें And go to a whole new level of life. और एक दूसरे स्तर के ऊपर पहुंच Where जाएं। people will see and they will be amazed at the glory of जहाँ पर God. परमेश्वर आपको देखेंगे और परमेश्वर आपको देखकर लोग आपको देखकर अचंभित होंगे।